పదం నిర్గమకాండము 20 అధ్యాయము 5-6 వచనాలు మనం చదువునట్లయితే దేవుని మాట విని తరాలను దేవుడు ఎలా దీవిస్తాడో, దేవుని మాట వినకుండా వారి ఇష్టానుసారమైన నిర్ణయాలలో జీవించే వారి యొక్క తరాలు ఏ విధంగా ఉంటాయనేది ఇక వాక్య భాగంలో రాయబడిన చూడండి. నిర్గమకాండము 20 అధ్యాయము 5-6 వచనాలు. ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱଗୌରବ ରକ୍ଷଣରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୈତୃକ ଅପରାଧର ପ୍ରତିଫଳ ଦାତା। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଓ ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ସହସ୍ର ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୟାକାରୀ। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖୁ ପ୍ରିୟମଣ୍ଡଳୀ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ କଥାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଦେଖୁ ଆଜି ଦିନରେ କେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ଘୃଣା କରିଥିବା ହେତୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥିବା ହେତୁ ହେଇପାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାରେ ବଳ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାରେ ଜୀବନ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ ଭାବିବା ହେତୁ ହିଁ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ବା ନିଜର କଥାରେ, ନିଜ ଜ୍ଞାନରେ, ନିଜ ଧନରେ, ନିଜ କାମରେ, ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥିବାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ନିକଟକୁ ଆସିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ, ଯେଉଁମାନେ କି ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତୃକ ଦୋଷ ବା ଅଭିଶାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରଖିଦେବି। ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରିୟମଣ୍ଡଳୀ। ପିତୃକ ଅର୍ଥ ଆଜି ମା ବାପା ଭାବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ଦୋଷ କରୁଅଛୁ ବା ଯେଉଁ ପାପ କରୁଅଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଗ୍ରହଣ କରୁନାହୁଁ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁକୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତୃକ ଅଭିଶାପରେ ସେମାନେ ଅଭିଶାପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବେ ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ 1000 ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବି। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖୁ ପ୍ରିୟମଣ୍ଡଳୀ, ଆଶୀର୍ବାଦ କେତେ କିଏ ଦିଅନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କାହା ହସ୍ତରେ ଅଛି? ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ଯଦି ପଢ଼ିବା ବହୁଳ ରୀତିରେ ଆମେ ମାନେ ବୁଝିପାରିବା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ ମଣିଷ ଠାରେ ନାହିଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ମଣିଷ ବଳରେ ନାହିଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ମଣିଷର ଭାବନାରେ, ବିବେଚନାରେ, ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ବା ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର 1000 ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି। ହାଲେଲୁୟା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ବାଇବେଲ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା ଆଜି ଦିନରେ, ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ମଧ୍ୟ କହିଲି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ତତ୍ପର ରହେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ତତ୍ପର ହେତୁ ପ୍ରଭୁଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଉ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଳ ବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁ। ଯଦି ବାଇବେଲରେ ଆପଣମାନେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ରେଫରେନ୍ସ ଅଧିକ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରେଫରେନ୍ସ ଲେଖିପାରନ୍ତି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତା ପଛରେ ବି ଆପଣମାନେ ସେ ରେଫରେନ୍ସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆହୁରି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିବେ। ଯେଉଁଠିକି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା, ସେଇ ଜାଗାରେ ଅବ୍ରାହମ ଏବଂ ଲୋଟଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିଲେ ଏବଂ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲା ପରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଏବଂ ଲୋଟଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସୋଦୋମ ଗୋମରାକୁ ଦେଖିଲା। ଦେଖୁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ କାହାକୁ ଦେଖିଲା କହିଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା। କିନ୍ତୁ ଲୋଟ ଆଶୀର୍ବାଦ କିଛି ଦେଖିଲା ପରେ ନିଜ ଚକ୍ଷୁକୁ ସୋଦୋମ ଗୋମରା, ଯୋଉଟାକି ଏକ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ସହର ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଚାଲିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଲୋଟ ନିଜ ଚକ୍ଷୁର ଦେଖିଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ବା ନିଜ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିଥିବା ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦକୁ କଳ୍ପନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋଟ କ'ଣ କଲେ କହିଲେ, ତାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚରିତ୍ରହୀନ ଜୀବନ ହେଇଗଲା ଲୋଟଙ୍କର ଜୀବନ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କି ତାହାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଏବଂ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ସନ୍ତାନକୁ ଦେଖିବା ଆମେ ମାନେ ଯଦି ଏକ ଚରିତ୍ରହୀନ ପରିବାର ଭାବରେ ଲୋଟଙ୍କ ପରିବାର ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼େ ରହିଥିବା ହେତୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଜୀବନ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଶୀର୍ବାଦ
जोटा कि समान रीति रे सदाप्रभु देवा पे चाहिए किंतु सेमान को समान रीति रे न पाई पारले कारण कौन कहले लोट चक्षुर थिबा अभिलाष आड़ को जाइके निज जीवन रे प्रभुंक ठारू दूर को चली गले बा प्रभुंकर आज्ञा को पालन करि पारले नै जीवन रे प्रभुंकर उद्देश्य को निज जीवन मध्य नहीं पारले नाही किंतु अब्राहम जदि भाई निज भाग नहीं कि गले मध्य अब्राहम चक्षु प्रभु आड़ को देखिबारु अब्राहम गोटे चरित्र सृष्टि करिथिबा व्यक्ति भाव रे आंभे माने वाक्य मध्य देखिबा को पाइथाउ सेही प्रकार बाइबल देखिले जितेबेले कि आंभे माने आपण माने गणना पुस्तक 16 अध्याय 32 एवं 33 पद जदि पछरे पढ़िबे करंग समय किछि लोक माने जाचकत्व आड़ को दृष्टि कले से माने जोटा कि आंभे भी एही प्रकार कार्य करि पारिबो आंभे भी समस्त प्रार्थना करि पारिबो आंबे भी फुलपिट रे छिड़ा ही पारिबो कहिके जो जगह कि सेमानकर दृष्टि न छिबा कथा सही जगह को सेमान दृष्टि को नहीं कि गले सेमाने सही समय रे सेमाने आखापाखी 250 जन लोक एवं तांकर सपरिवार समस्ते विनाश हो माने देखु जोटे कि देखु प्रेम अनेक लोक बाइबल रे आशीर्वाद जगह रे अभिशाप निज जीवन रे पाइले सेमाने अनुग्रह पाइबा जगह रे बा सेमानकर वंश बा पीढ़ी आशीर्वाद देखिबा बदल रे सेमान अभिशाप रो पात्र रे सेमान को परिवार सेमाने परिवर्तित हो गले सही प्रकार में माने जिहोशियो 7 अध्याय 22 एवं 23 एवं 24 पद जदि पढ़िबे आकान नामक जने व्यक्ति को माने देखु जे कि एक साधारण गोटे रूपा एवं साधारण गोटे किछि सुना निमंते लोभ करिबा द्वारा निज परिवार को से विनाश आड़ को नहीं गले प्रिय मंडली देखो तो सुना आनिबा द्वारा कि रूपा आनिबा द्वारा आशीर्वाद मिलला ना आकान को जीवन रे जोटा कि सदाप्रभु कहिथिले केही मध्य सही देश रु कोनोसी वस्तु तुमे लोभ करिबो नाही आज सदाप्रभु मदाम मान को कहंती जे ए भूमि ऊपर कोनोसी वस्तु को तुमे लोभ कर नाही कोनोसी विषय को तुम मान को दृष्टि न छाओ तुम मान को हृदय तुम मान को दृष्टि मो प्रति रहो सदा सर्वदा तुम मान कर आकान रे जीवन रे कोन हला कहिले अल्प किछि सुना अल्प किछि रूपा आड़ को आकर्षित हेले हुई तो से भाविथिबे यहाँ मो परिवार पाए मो संतान मान को पाए आगामी दिन पाए भविष्य हो पारिबो कहिकि किंतु प्रभुंकर आज्ञा न मानिबा द्वारा प्रभुंकर कथा न मानिकी निज उद्देश्य रे निज बल रे आकान करिथिबारो आकान रो जीवन मध्य प्रियबंडा में देखो एई जगह रे जे विनाश को परिपूर्ण हो गला तांको जीवन रे मु कहिबार उद्देश्य आंभ मानकर जीवन मध्य एक आशीर्वाद जनक हेबा हेले जदि आंभ मानकर आगामी पीढ़ी को मध्य में आशीर्वाद जनक को नेबा हेले पिता माता भाव रे बा आज दिन थिबा संतान मान समस्त मध्य प्रभुंकर भय एवं प्रभुंक मार्ग रे माने चलिबार अछि आमे समस्ते सपरिवार प्रभुंक मार्ग रे चलिबा शिखिबार अछि माने आमे प्रत्येक प्रभुंकर आज्ञा को पालन करिबा व्यक्ति भाव रे आमे रहिबार अछि सही प्रकार जब आम देखा 2 सामुएल 3 अध्याय 1 पद जदि पढ़े जोटा कि साउल गोटे दिन सिंहासन रे वास कला आम समस्त जानू ए भूमि उपर साउल भाया बलवान कहीं नहांती साउल भाया देश को शासन करने व्यक्ति नहांती केते बेले पर्यंत साउल प्रभुंकर आज्ञा को मानिकी चली पर्यंत किंतु जितेबले कि साउल प्रभु ठारू दूर को जीवा आरंभ कले कारण कौन साउल भाविले मोर बुद्धि मोर बल मोर सैन्य मोर राज्य मो पाई बहु विस्तारित हो जाए दिन में ए सबुथिरे मु प्रभुंकाड़ देखा अपेक्षा मो ठारे सबकि मत आशीर्वाद जनक भाविदेले साउल जीवन में किंतु जब आपण मैंने 3 अध्याय 1 पद जो देखिए साउल परिवार भ्रष्टता को चलीगले वाक्य लिखा जाए कहीं प्रिय मंडल गोटे राजा पर्यंत जाइतबा व्यक्ति पुनर्बार कहीं गोटे भ्रष्टता को चलीगले जीवन मध्य आज आपण मैंने भावत अनेक समय आमर 2टी हस्त चालू अच्छी 2टी गोड़ चालू अच्छी मो सब प्रकार रीति वृद्धि प्राप्त हो जाऊँगी कहीकि अनेक अवहेला जीवन प्रभु ठारे अच्छी दिन में भय नथिबा जीवन पवित्रता नथिबा जीवन प्रभु आड़ को मन न फेरवा जीवन मन रखु साउल भाया हुए तो आज ना काली एक भ्रष्टतम परिवार मध्य आसी जापे प्रिय मंडली साउल बोले राजांकर परिवार जदि भ्रष्ट हो गले आंभे माने केते आज साउल दृष्टि देखिले आंभे माने जी कि आम देशर प्रधानमंत्री समान अटंती साउल से दिन में गोटे प्रधानमंत्री जीवन भ्रष्टता को जीव आमे केही केबे कल्पना करिबा असाध्य अटे किंतु साउल गोटे प्रधानमंत्री स्थायी को जाइके परिवार एक भ्रष्टता को चलीगला साउलंकर जीवन मु कहिबार उद्देश्य यहाँ अटे मनुष्य जीवन तत्परता रहे मु आशीर्वाद देखिबार अछि
मो वृद्धि पाइबार अच्छी मोर परिवार नुहे मोर पीढ़ी पीढ़ी पर्यंत एक उन्नत आड़ को छीबार अच्छी आम समस्ते भावु किंतु यही आशीर्वाद सदाप्रभुଙ୍କର वाक्य में यात्रा पुस्तक 20 अध्याय देखिला जोटा कि 4टी पीढ़ी पर्यंत जो माने मोर आज्ञा को मानती ना मते घृणा करते अर्थ मोर वाक्य को मोर सहभागिता को मोर पवित्रता को मोर राज्य को जो माने घृणा करती ना से 4टी पीढ़ी पर्यंत बा पितृक अभिशाप से अभिशाप देवी से 4टी पीढ़ी पर्यंत से आशीर्वाद पाइबे ना किंतु जो माने मोर आज्ञा पालन करेंगे जो माने मो मार्ग रे चलिबे जो माने मोर उद्देश्य बढ़िबे से 1000 पीढ़ी पर्यंत से मो आशीर्वाद करके ही चलिबे हालेलुया। तो से निमते आज दिन में आपण मान बाइबल गोटे व्यक्ति परिचय देवे आज दिन में जोटे एक सर्वोत्तम परिवार से परिवार जे परिवार प्रभुंकर आज्ञा को पालन करिथिबा तो सपरिवार से परिवार आशीर्वाद देखिले से सदाप्रभु से बहुल रीति आशीर्वाद कले आशीर्वाद साधारण रीति रे आंबे माने भाभी था जे मो अध घंटा आंठू भांगी प्रार्थना कले मत आशीर्वाद मिली नहले मो रविवार दिन प्रभु निकट आशीर्वाद मिली यहाँ नुहे ये आशीर्वाद पछरे थिबा रहस्य ये व्यक्ति ठार आंबे माने शिखि पारिबा अछि दिन रे जदि प्रकृत रे ये विषय को जब आम ग्रहण करके जदि आम मैंने चलवा ताले सुनिश्चित भाव में आम मैंने आशीर्वाद पाई देखा से व्यक्ति की आम मैंने समस्ते जानी परिवार अटे आम समस्ते से परिवार को भल भाव में जाचु आसु देखा आदि पुस्तक 9 अध्याय प्रथम पद को पाठ करवा आदि पुस्तक 9 अध्याय प्रथम पद बहुत गुरुत्वपूर्ण वाक्य आम शुणुचु प्रिय मंडली आम मैंने जदि ग्रहण करिपरिबा जदि आम मन को आम जीवन को परिवर्तन करिपरिबा तो सुनिश्चित भाव में आम आशीर्वाद अधिकारी हो पारिबा। आदि पुस्तक 9 अध्याय प्रथम पद एथि उत्तारु परमेश्वर नोह ओ तांको पुत्र मानंकु आशीर्वाद करी कहिले तुम्भे माने प्रजावंत ओ बहुवंश होई पृथ्वी को परिपूर्ण कर हालेलुया। देखंतु प्रिय मंडली एई जगह रे नोहंकु एवं नोहंक पुत्र मान को सदाप्रभु कौन कले कहले आशीर्वाद कले हालेलुया। देखंतु प्रिय मंडली से समय भूमि तो कहीं नहांती नोहंक आशीर्वाद करिवार आवश्यकता कौन अछि सारा जगतर मालिक तो नोह अटंती आखि पाउथिबा संपत्ति सब नोहंकर ही अटे सम्मुखरे कौन सी व्यक्ति नहांती जे नोहंक सहित लड़िबा पई तो यही प्रकार समय नोहंक सदाप्रभु आशीर्वाद करिवार आवश्यकता कौन अछि सबु तो नोहंकर अटे मन रखंतु प्रिय मंडली ये सारा जगत भी आंभ मान सम्मुखरे जदि दिया जाए प्रभुंकर आशीर्वाद जदि नहीं आमे केबे भी वृद्धि प्राप्त आशीर्वाद देखि पारिबा नहीं यहाँ नोहंकठार आमे जानि पारिबा। देखु नोहंकर आशीर्वाद जोटा आमे माने प्रथम 9 अध्याय प्रथम पदर पढ़िला जे सदाप्रभु आशीर्वाद कले किंतु ए नोह आशीर्वाद केमिति पाइले कहीं सदाप्रभु नोहंक आशीर्वाद कले से दिन में अनेक लोक छाड़ी नोहंक परिवार को कहीं बाछिले सदाप्रभु आशीर्वाद करने आ गोटे वाक्य को देखा आदि पुस्तक 6 अध्याय 8 पद गोटे पढ़ा मात्र नोह सदाप्रभु को दृष्टि रे अनुग्रह प्राप्त हेले मात्र अनुग्रह प्राप्त हेले हालेलुया। देखंतु प्रिय मंडल नोह कहा दृष्टि रे कि मनुष्य दृष्टि रे मनुष्य दृष्टि रे कि देखंतु नोहंक विषय स्पष्ट लिखा जाए नोह सदाप्रभु दृष्टि रे अनुग्रह प्राप्त हेले केते उत्तम विषय को मैं देखो छे जगह रे नोह आशीर्वाद पाइबार कारण कौन कहले नोह सदाप्रभु ठारो अनुग्रह प्राप्त हेले अनुग्रह पाइले नोहंक जीवन रे प्रिय मंडल अनुग्रह केमिति आसीबो अनुग्रह आमे माने केबे पाई पारिबा आमे माने प्रभु को कहो प्रभु जे प्रभु तुम अनुग्रह कर मत अनुग्रह कर तुम अनुग्रह कर तुम दया कर आमे माने प्रार्थना कर जदि प्रभु को कहबा कि प्रभु तुम मत अनुग्रह कर कहले कौन प्रभु मान को अनुग्रह दे देबे आम मान को भाई जीव आमे मान अनुग्रह जदि आमे माने सेही प्रकार अनुग्रह मागिले आमे मान अनुग्रह पाई छिबा जदि आमे समस्त अनुग्रह मागिबा प्रभु को
किंतु अनुग्रह पाइबा निमंते नोह जीवन रे 7 प्रकार गुण को सदाप्रभु देखिले। हालेलुया। ये 7 प्रकार गुण प्रत्येक परिवार मध्य नितांत दरकार अच्छी दिन रे आम समस्त भितर 7 प्रकार गुण जदि रहिबा अनुग्रह उपर अनुग्रह वर्षिब आम मान जीवन रे जो माने अनुग्रह प्राप्त हे से माने ही आशीर्वाद अधिकारी। अनुग्रह न पाई कि आंबे माने आशीर्वाद पाई पारिबा नै आंबे माने तो सेई जगह रे नोह जीवन रे आंबे माने देखु अछु जे नोह को सदाप्रभु कहिले जे सदाप्रभु को दृष्टि रे अनुग्रह पाई थिबारो नोह आशीर्वाद पाइले एवं प्रजावंत हेले एवं तुम्भे माने भूमि उपरे फलवंत कि तमे भूमि को पूर्ण करिबो कहि कि नोह को सदाप्रभु आशीर्वाद कले सेई दिन रे जदि आंबे भी से आशीर्वाद पाइबा पे जदि आसीचु नोह को जीवन थिबा आशीर्वाद बा नोह को जीवन थिबा एही अनुग्रह पाइबा निमंते 7टी गुण कमे माने आलोचना करिबा तो ये 7टी गुणता जी आम मैंने शेष करा ना जदि गोटे बा 2टी बा 3टी जब आलोचना कले भी बाकी तमाम वाक्य को काली दिन में आम मैंने शेष करवा ये वाक्य को काली दिन संपूर्ण शेष करके आम प्रकृत आशीर्वाद आम यात्रा करवा से निमंते आम मैंने आजिर वाक्य एवं कालीर वाक्य एक आशीर्वाद पाइबा निमंते आवश्यकता थिबा मनुष्य भितर परिवर्तन बा मनुष्य भितर कौन थिले बा परिवार भितर कौन थिले प्रकृत रे नोहंक बळे आशीर्वाद आम मैंने भी पाई पारिबा अछि दिन रे से विषय को आम मैंने जानिबा तो नोह प्रिय मंडली अनुग्रह पाइबा पई 7टी विषय को लेकिन अनुग्रह आसिला तांको जीवन रे तो प्रथम विषय को देखिबा सही 6 अध्याय 9 पद को पढ़िबा आदि पुस्तक 6 अध्याय 9 पद नोहंकर वंशावली यही नोह अपना वर्तमान समयर लोकमानक मध्यरे धार्मिक बस वर्तमान समय लोकमानक मध्यरे नोह कि अटंती धार्मिक नोहंक काल रे वर्तमान समय नोहंक काल रे जेते भी लोक संख्या थिले भूमि उपरे सेमानक मध्यरे नोह किए कहले धार्मिक प्रियमंडल धार्मिक केमिति आमे जानिबा जे धार्मिक काहाको कहा छे धार्मिक व्यक्ति निमंते केमिति आमे माने कहिबा जे धार्मिक नोह धार्मिक केमिति धार्मिक अर्थ कोन धार्मिक कहले आपण माने जानिबार अछि जे सदाप्रभु जो काम आंब मान को दियंती ना सही काम को सदा सर्वदा करने को धार्मिक व्यक्ति को निया छे मन रखु सदाप्रभु मन करंतु आपण को सुसमाचार प्रचार पे प्रभु मनोनीत कले आज दिन रे आपण माने कष्ट भी आसु दुख भी आसु ताड़ना भी आसु जदि आपण सब परिस्थिति रे सही काम जदि तुलौचंती आपण धार्मिक लोकंक मध्य गणना को छिबे आपण मन करंतु सदाप्रभु आपण किछि सेवा करिवार गुण दैछंती आपण को बस सेवा करिबा पे आपण को भीतर गोटे क्वालिटी अछि तेबे जदि आपण प्रभुंक पई पारे बा लोक मान को पई पारे समाज पई जदि आपण किछि सेवा करिबा पई प्रभु जते बेले मनोनीत बा सेही गुण से टैलेंट आपण को जे दैछंती आपण को जीवन रे कोरोना बळा 100टा कोरोना आसिले भी आपण सेही सेवा जदि करूचंती ना आपण धार्मिक मान को मध्य गणना को छिबे मन करंतु आपण को जीवन रे सदा प्रभु जदि गोटे उत्तम परिवार गढ़ा व्यक्ति जदि करिसंती कष्ट भी आसु बा समस्या भी आसु परिस्थिति भिन्न भी जाओ जदि आपण परिवार रे आपण केबे भी पाद फिसुला जीवन जदि नाही आपणकर तेबे आपण धार्मिक मान मध्य गणना को आसीबे धार्मिकता अर्थ स्पष्ट भाव में जानिबार अछि जे प्रभु जो क्वालिटी आम मान को दियंती जोटा कि गुण जो गुण प्रभु आम मान को देइछंती सेही गुण को शेष पर्यंत करि चालिबा को धार्मिक व्यक्ति को आछाय नोहंक जीवन में आम देखो से जगह जे नोहंक सदा प्रभु धार्मिक सेही दिन लोक मान मध्य एक धार्मिक व्यक्ति भाव में सदा प्रभु देखिले किंतु जब आम रोमियो पत्र 3 अध्याय को जब छिबा से जगह पाउल कहते जे जणे भी भूमि उपरे धार्मिक व्यक्ति नहांती ये विषय को रोमियो पत्र रे पाउल ही वर्णना करती जदि भूमि उपरे जणे भी जदि धार्मिक लोक जदि नहांती ताहले आंबे केमिति धार्मिक लोक ही परिबा आमे से विषय को तो नहीं था आज दिन रे पाउल तो कहते जे भूमि उपरे जणे भी धार्मिक लोक नहांती समस्त आमे पाप करि अछु ये विषय तो पाउल कहता आमे माने जानू किंतु मन रखंतु
से ही रोमियो 3 अध्याय 24 पद को जेते आपण माने पढ़िबे सेही जगह सेही पौल कहंती जे आम्भे माने ख्रीष्टंकर अनुग्रह द्वारा आम्भे माने धार्मिक हेबार अधिकार पाई अछु। हालेलुया। ख्रीष्टंकर अनुग्रह रे आमर अनुग्रह रे नुह आम्भे माने किंतु एई जगह रे नह सदाप्रभुंकर अनुग्रह पाइले काहेकि कहले धार्मिक थिबा हेतु कहा जाइछे आम्भे माने ख्रीष्टंकर अनुग्रह धार्मिक हेछु। ख्रीष्ट आम्भ मान को पाप क्षमा देइथिबा तु कालवरी क्रूस आम्भ मान को निमंते रक्त झरैथिबारो आम्भे माने धार्मिक व्यक्ति आम्भे माने हेछु। जदि बाइबल देखिबा सेही प्रकार गालती रे मध्य पाउल गालती मंडली को पाउल विषय कहते 3 अध्याय 6 पद पढ़िले अब्राहम सदाप्रभुंक दृष्टि रे धार्मिक व्यक्ति थिले। हालेलुया। से निमंते से आशीर्वाद पाइले। अब्राहम सदाप्रभुंक दृष्टि रे से मध्य धार्मिक थिले कहीं धार्मिक विषय में से स्पष्टता कले आपण मानकु अब्राहम को मध्य प्रभु जो विषय कहले अब्राहम शेष पर्यंत से विषय को करि चलिले निज जीवन रे से केबे भी तांको जीवन मध्य पछघुंचा देना अब्राहम मध्य आम अनेक समय आमर परिस्थिति को ही देखिक ही पारे आमर अभाव को देखी पारे बा कौन सी पापर प्रलोभन देखिकी कौन सी लोक मान किसी लोभ आंबे माने देखिबा द्वारा आंबे माने धार्मिकता को अहरैक आंब मान को जीवन रे अधार्मिक व्यक्ति भाव को आंबे माने चली जाओ किंतु बाइबल स्पष्ट करे आशीर्वाद बा अनुग्रह पाइबा पहले प्रथमे आपण को मते धार्मिक हेबा को पड़िबो से धार्मिकता आंभ मान को जीवन रे नितांत आवश्यकता अछि। ये धार्मिकता पाइबा पहले प्रभु आंभ मान को गोटे दिन रे उद्धार कले आमे से उद्धार मार्ग रे ही चलीबार अछि। प्रभु गोटे दिन गोटे दायित्व देले आंभ मान को बा प्रभु ठारे आमे अनेक समय कमिटमेंट करू प्रभु मोर जीवन रे जहां भी आसुना मु तुम मान को पे चलीबी प्रभु मु तुम पे किछि करिवि प्रभु मु तुम पे जीवन काटिबी प्रभु तुम उद्देश्य रे मु समर्पण प्रभु आमे मुहरे तो अनेक समय कही था किंतु क्रिया निकट आसीबा समय को आंभ भीतर से धार्मिकता रहे नाही आमे देइतिबा से कमिटमेंट आंबे माने केबे भी पालन करनो तंबे माने आंबे माने अनेक समय लोट भलिया चक्षु को देखिथिबा विषय तर आंबे माने प्रभु ठार दूर को चली जाओ बा परिवार को आउ अधिक उन्नत स्थिति को नेबा पई आहुरी उन्नत आडक आशीर्वाद देखिबा पई आंबे माने प्रभु ठार दूर को चली जाओ किंतु नह सेही प्रकार व्यक्ति नहते नह किए कहले बहुत धार्मिकतार अर्थ ए विषय को मन भी रखता आपण माने एक विश्वस्तता एवं चंचलता रहिबा व्यक्ति ही धार्मिक व्यक्ति ही पारिबो। विश्वस्तता बहु नितांत धार्मिक व्यक्ति जीवन रे कहीं आयु आम नहंक काल को देखो माने नह प्रिय मंडली सदाप्रभु जिते कहले कि नह तुम्हें जहाज निर्माण कर जिते कहले से समय को नहंक काल रे भूमि उपरे वर्षार भी आवश्यकता नहीं कहीं कहले सदाप्रभु यही प्रकार भूमि को आशीर्वाद करते जे जोटा कि अनेक रीति भूमि आशीर्वाद परिपूर्ण जाइथिला लोक माने परिश्रम टिके कले बहुल रीति आशीर्वाद पाउथिले किंतु सही प्रकार समय सदाप्रभु नह को कहले जे नह तुम्हें जहाज निर्माण कर नह केबे जहाज देखी नहांती नह केबे आकाश रे वर्षा देखी नहांती किंतु यही प्रकार परिस्थिति रे नह कौन कले कहले विश्वस्तता प्रभु मते कहले सारा जगत लोक माने खाद्य रे पीबारे एवं अनेक प्रकार कार्य करिबारे व्यस्ततार थिले से माने सही समय नह प्रभुंकर कथा को मानिके चलिले प्रिय मंडली धार्मिकता अर्थ ताहा ही अटे एक विश्वस्तता प्रभु जदि गोटे कथा कहले आपण को आपण सही काम ही आपण जीवन रे करिवार अछि आपण माने ता केते काल लागिबो होय त हम जीवन संपूर्ण बा शेष हो जाई पारे किंतु आम्भे माने सही कार्य ही करिवार अछि हम मान को जीवन रे या को कहा जाए एक विश्वस्तता आंभ मान को जीवन प्रिय मंडली से निमंते जब आम देखा आयुबंक जीवन को जदि छीबा आयुबंक जीवन 7 प्रकार कष्ट दे आयुब यात्रा कले गोटी बा दुईटी कष्ट ने आयुबंक जीवन रे 7 प्रकार रीति ताड़ना देखिले आयुबंक जीवन रे मो विगत सप्ताह मध्य कहूल आयुबंकर ताड़ना मध्य किछि जोटे कि आयुब यही प्रकार ताड़ना पाई गले छे जोटे संपत्ति हरैबा गृह हरैबा संतान हरैबा बंधु मान को हरैबा शारीरिक सुस्थता को मध्य शेष को हरै देले एते असुस्थ जीवन को चली गले जे निज भार्या बा निज स्त्री मध्य लोटन को आयुबं को देखिकी एक विरक्तिकर जीवन उत्पन्न करि पकेला कहीं कहले तांको सेवा करिबा पे मध्य इच्छा लागले एते दुर्गंध थिला तांको शरीर एही प्रकार 7 प्रकार कष्ट मध्य बा ताड़ना मध्य परिस्थिति मध्य आयुबं को जीवन थिला
किंतु आईब कौन कहते जानती ना मो धार्मिकतार वस्त्र परिधान कले से ही धार्मिकतार वस्त्र मते परिधान करिथिबारु ए भूमि ऊपर मो आशीर्वाद देखिली हालेलुया। देखिबा कि से वाक्य को आईब 29 अध्याय 14 पद को जदि पढ़िबा आईब केते स्पष्टतार कहते विषय को देखंतु। मु धर्म परिधान कली मु धर्म परिधान कली ओ ताहा मते परिधान कला ताहा मते परिधान कला मोहर यथार्थकता मोहर यथार्थ कथा आवरण वस्त्र ओ मुकुट स्वरूप थिला मुकुट स्वरूप थिला हालेलुया। देखंतु प्रिय मंडली आईब 7 प्रकार कष्ट भितरे निज विषय केते साहसर सहित कहि पारुछंती मु धार्मिकतार वस्त्र परिधान कली मो जीवन रे मो जहाँ भी गला मो जीवन रे ना मु धार्मिकता अर्थ प्रभु गोटे दिन कथा देतिले प्रभु मो जीवन रे जहाँ भी जाओ मु तुमको छाड़बी नहीं प्रभु प्रभु जिते भी परिस्थिति आसी जाओ मु तुम दूर को जीवी नहीं प्रभु मु जहाँ भी ही जाओ प्रभु तुमको आराधना करिबारे तुमको बलि देबारे तुमर प्रशंसा करिबारे तुमको गौरव करिबारे मु केबे भी पछ घुंचा देबी नहीं प्रभु मु धार्मिकता वस्त्र ही पिंधिदेली मो जीवन रे मोर वस्त्र केबे भी मु वस्त्र पिंधिथिबारो सेही वस्त्र मते परिधान कला सेही दिन रे सेति निमंते मु गोटे मुकुट पिंधिली मो जीवन रे मु आशीर्वाद देखिली पुनर्बार 2 गुण रे। आम्भे माने समस्त प्रिय मंडली एक आत्मिक चक्षुर आईब को देखिले आमे बुझी पारिबा छै दिन रे जदि आमे शारीरिक रीति रे जदि वाक्य को सुनिबा आपण मन को बोर लागिबो एथिरे कौन बड़ कथा अच्छी कौन मिली यही प्रकार भाविबे किंतु आत्मिक चक्षुरे जीवन वाक्य को शुणिबे बा ग्रहण करबा पे चेष्टा करिबे तेबे जे आपण को जीवन आशीर्वाद देखिबे आपण माने जदि आमे देखु छै जगह रे आईब कहउचंती जे मो धार्मिकर वस्त्र पिंधि देली ए धार्मिकर वस्त्र दिने पिंधि देले ही जीवन मो जीवन रे थरे वस्त्र पिंधि देले हम मान को ही जीव कि हेबो नाही केमिति कहले देखंतु ना जियो माने गोटे उड़िनी उड़ंती ना जियो माने जदि झील मैंने जो ओढ़नी को उड़ती बा चुन्नी जोटा मैंने कहू ए चुन्नी बा ओढ़नी को थरे शरीर उपर पकईदेले दिन तमाम से शरीर उपर से चुन्नी रहिबो सही प्रकार रहिबो नाही ताको बारंबार बारंबार से माने ताको सजाड़ीबा को पड़े से माने बारंबार बारंबार प्रत्येक सेकेंड से माने तांकर चुन्नी आड़ को तांकर दृष्टि बा तांकर हृदय को नेबा को पड़िबो नहले से ओढ़नी तांको शरीर रे जो जगह रहिबा कथा सेही जगह से चुन्नी से मान को शरीर ऊपर रहिबो नाही सेति निमंते से माने बारंबार गुटे हस्त बा गुटे नजर गुटे चक्षु से मान करो ओढ़नी ऊपर से मान को दृष्टि रहे सेति निमंते जिसाई पुस्तक रे प्रकार लिखा जाए प्रियमंडल जदि आपण 61 अध्याय 10 पद जदि पछरे पढ़िबे जोटा कि जिसाई प्रकार कहती धार्मिकतर ओढ़नीर बाह्य वस्त्र स्वरूप तुम्हें परिधान करिवार अछि बाह्य वस्त्र बोलिया कहीं कहते से आंभे माने जो जगह को बिछिबा ये बाह्य वस्त्र बिना कौन सी जगह को बिछिबा नहीं आमे गृह रु बाहर जेते बेले प्रथमे बाह्य वस्त्र पिंधिले जे आमे माने बाहरी थाओ सेही प्रकार जिसाई कहउछन धार्मिकता जेउटा कि प्रतिदिन तुमको धार्मिकता आड़ को दृष्टि करिवार अछि प्रतिदिन प्रभु मते देइतबा दायित्व रे प्रभु मते देइतबा काम रे प्रभु मते रखितबा स्थान रे मो केते विश्वस्त अछि दिन रे मैं केते उत्तम काम करू अच्छा दिन रे मोर धार्मिकता द्वारा मो प्रभुंकर अनुग्रह पाइबी कि एही दृष्टि आंभमान को जीवन रे नितांत भाव आसीबार अच्छा दिन रे कहीं ना सही जिसाय आ गोटे भल विषय कहते प्रिय मंडली जिते बेले कि आंबे माने विश्वासी भाव अच्छु आंभ मान मध्य अनेक लोक भावित जे मो धार्मिक लोक ही अटे अनेकों भितर धारणा थाए ना मो धार्मिक लोक कहीं धार्मिक कहले ना मो प्रभुंकर काम करुअछि बा प्रभु मते जो दायित्व देले मो करुअछि मो प्रभुटारे विश्वस्त अछि आमे माने कहि थाउ किंतु जिसा गोटे स्टेटमेंट एही प्रकार कहिसंते जे तुमे धार्मिक लोक कि नुहे जानिबा पे तुम्भ भितरे 7 प्रकार क्रिया दरकार ये 7 प्रकार क्रिया तुम्भ भितरे रहिले जाए तुम्भे माने धार्मिक लोक अट हालेलुया। देखु प्रिय मंडली बाइबल एत स्पष्ट करे आम मान को जे मो बहु गभीरतार मेसेज दौर आपण माने जदि भलरे शुणिबे भल लगिबो कि आपण शुणी पारु नांती मो अनुभव करू अच्छे मध्य शुणिबा पे केते लोकंकर इच्छा भी नाही कारण कोन ना
ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶୈତାନ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁଳ ଅଛି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଆରମ୍ଭରୁ, ଯୋଉଟାକି ସାଉଲ ବି ଭାବିଲା ମୋ ପାଖରେ ବହୁଳ ଅଛି ଆଶୀର୍ବାଦ। ସାଉଲ ଭାବିଲା ମୋ ଠାରେ କମି କ'ଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ସାଉଲର ପରିବାର ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସାଉଲ ପରିବାର ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବା ଅନୁଗ୍ରହରେ ଯିଏ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ନା, ତା ପାଖରେ ଯାହା ବି ତା ସେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ଆମେ ପାଇବା ନାହିଁ, ଆମେ ଯେତେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ହେଇଥାଉ ଆଜି ଦିନରେ, ତୃତୀୟ ପିଢ଼ି ଚତୁର୍ଥ ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପିତୃକ ଅଭିଶାପରେ ରହିଯିବ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାର ବା ଆମ ପରିବାର ଉପରେ, ଆମ ସନ୍ତାନ ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି କହିଲେ ସେ କରିକି ଦେଖାନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ପ୍ରଭୁ କହିକି ଛାଡ଼ିବା ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ସେ କରନ୍ତି ହିଁ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ବାଇବେଲରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ହଜାର ପିଢ଼ିର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଶାପ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ପରିବାର ବାଇବେଲ ଦେଖୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତାହେଲେ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବା। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଯିଶାୟ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଧାରଣା ଥାଏ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ଆସୁଛୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭାବିଥାଉ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣ ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଧାର୍ମିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଧାର୍ମିକ, ଯଦି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଧାର୍ମିକ କହିକି ଆଜି ଦିନରେ ଆମ୍ଭେ କହିଦେଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ ନା। ମୁଁ ତ କହିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ କହିକି, ମୁଁ ତ କହିଦେବି ଆଜି ଦିନରେ ମା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କମିଟମେଣ୍ଟ କଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ସେବା କରୁଛି କହିକି ମୁଁ ନିଜେ ଭାବିଦେବି ଯେ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ହେବି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ବାଇବେଲ କହିବାର ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ କି ନୁହେଁ ଆଜି ଦିନରେ। କାହିଁକି ନା ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେତେବେଳେ ବାଇବେଲ କହିଲା, ସେ ଧାର୍ମିକ କି ନୁହେଁ ତାହା ବାଇବେଲ ହିଁ କହିବାର ଅଛି। ମୁଁ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ମୋତେ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କହିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିପାରେ। ହয়তো ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା ଦେଖିକି ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଏନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ କ୍ରିୟା ବହୁତ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ମୁଁ କହିପାରେ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକରେ ଯଦି ଗଣନା କରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧା ହେଇଯିବ, ଆପଣ ମୋର ଭକ୍ତି ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧା ହେଇଯିବ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଯିଶାୟ କହିଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ 7 ପ୍ରକାର ରୀତିରେ ମଣିଷ ତୁମ୍ଭ ଭିତରେ 7ଟି ବିଷୟ ତୁମେ ଦେଖିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ କହିପାରିବ ଯେ ତୁମେ ଧାର୍ମିକ କହିକି। ଦେଖିବା ସେ ବାକ୍ୟକୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିପି ଅଛି କି ନା ଟେଷ୍ଟିଂ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମେସିନ୍ ଯେମିତି କହେ ନା, ସେଇ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା ଯେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ କି ନୁହଁ ଆଜି ଦିନରେ। ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଧାର୍ମିକ ଯଦି ନୁହଁ କେମିତି କରିବା? ଦେଖି ତ ଦେମା ଅଛେନି, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଯଦି ଧାର୍ମିକ ନୁହେଁ ବୋଲି ଯଦି ଲାଗିବ କ'ଣ କରିବା? ଧାର୍ମିକ ବନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ, ବନିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଚେଷ୍ଟାଟା ବହୁତ ଦୂରେ ରହିଆସେ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କେବେ ନାହିଁ ଆସି, ଜାଣିଲେ ତ। ଦେଖିବା ଯିଶାୟ 32 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦକୁ ଯିବ। ଏସିଆ ଗ୍ରନ୍ଥ 32 ଅଧ୍ୟାୟ 17 వచ్చును। ପୁଣି ଧାର୍ମିକତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶାନ୍ତିମୟ ହେବା। କ'ଣ ଧାର୍ମିକତାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ମନେ ରଖିବେ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତିମୟ ହେବା। ଶାନ୍ତିମୟ ହେବା। ଆଉ ଧାର୍ମିକତାର ଫଳ, ଧାର୍ମିକତାର ଫଳ ନିତ୍ୟ ସୁସ୍ଥିରତା, ନିତ୍ୟ ସୁସ୍ଥିରତା, ସୁସ୍ଥିରତା ଓ ନିର୍ଭୟତା ହେବ। ନିର୍ଭୟତା ହେବ। ପୁଣି ମୋହର ଲୋକମାନେ, ପୁଣି ମୋହର ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିମୟ ବସତି ସ୍ଥାନରେ, ଶାନ୍ତିମୟ ବସତି ସ୍ଥାନରେ, ଦୃଢ଼ ଆବାସରେ, ଦୃଢ଼ ଆବାସରେ, ସୁସ୍ଥିର ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିବେ। ସୁସ୍ଥିର ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିବେ। ବାସ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଧାର୍ମିକ ଆପଣ ଅଟନ୍ତି କି ନୁହେଁ ଆପଣ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ରହିବ? ଶାନ୍ତିମୟ ଜୀବନ। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତିମୟ ଜୀବନ ରହିବ, ଯୋଉଟାକି ତାପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେ ଏକ ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିବ
एक सुखमय जीवन तार रहिबो एवं एई प्रकार सात प्रकार ए क्रिया तुम्भ भितर थिले जाए आपण माने धार्मिक कहि कि निजको निजे कहि पारिबे। ए सातोटी विषय गुटे भी जदि नाही आमे धार्मिक व्यक्ति नुह प्रिय मंडली। बाइबल से कहे आउ थे पढ़ा कि से पद को आपण मैंने बुझीपारे भल आउ थे पढ़ा जदि कहीं पाई ना देखु जिसाय 32:17 पद पुणी धार्मिकतार कार्य पुणी धार्मिकतार कार्य शांतिमय हेबो। शांतिमय हेबो। आमे समस्ते शांतिमय जीवन काटुछु शांति अच्छे आमे कि रागी आमे समस्ते हूँ कले सकाल पर रागुछ आमे हूँ कले सकाल पर टेंशन आम लाइफ रे नुहे जहाँके देखले भी आमे टिके विरक्ति ही माने जहाँके देखले भी गाड़ी लगी माँ जहाँके देखले भी शत्रु बड़े एंता देखमा इटा शांतिमय जीवन इटा शांतिमय जीवन से तार कथा इता गीतार कथा से तार चुगली करवा इटा शांतिमय जीवन ना बहुत शांति लगसे कि मैंने कहले नुहे किए गोटे केन काम करते बोले हेन गाँ कर बॉम्बे पले जा दिल्ली पले जा हाँ पले जा बढ़िया हवा शांतिमय जीवन ना यहाँ आज अनेक लोग ये शांति अच्छा ना यही प्रकार जीवन जार अच्छे मन रखु शांति ना तुम जीवन रे शांति जीवन कौन कहले दुखरे थिबा लोक को भरोसा दिए हालेलुया निराश थिबा लोक मान को आनंदित कर दिए अभाव थिबा लोक मान को अभाव बाहर मार्ग दर्शे दिए या हूँ शांतिर मार्ग प्रिय मंडली शांतिर जीवन तो तलक पढ़ा धार्मिकर फल धार्मिकतार फल नित्य सुस्थिरता सुस्थिरता हालेलुया जो प्रकार परिस्थिति रे मध्य सुस्थिर जीवन काटिब से केबे भी आज किसी अभाव है निराश जीवन आज दिन में परिवार किसी गोटे रोग बा दुर्बलता आसला से के भांगी पड़बन जीवन रे एक सुस्थिर जहाँ हेले भी आयुब को आम देखिले ना आयुब को जीवन में 7 प्रकार संकट आसला कि आयुब कहले मो धार्मिकतार वस्त्र परिधान करिथिबारो सेही वस्त्र मते परिधान करिथिबारो मो मुकुट पिंधिली 7 प्रकार परिस्थिति आसिले भी मो जीवन में व्याकुलता आसला नहीं मते सुस्थिर अस्थिर करिपाले ना मते केबे भी मो अनुभव करिथिबा आयुब जीवन में 7टी संतान हरई देथिबा समय सुस्थिर जीवन रहिबा प्रिय मंडली। आमर घरे तो जदि लेंबूटे ना ना बोले तो इदा लेंबू गुटे ना आनी पाली रे आज का 5 टंकार लेंबू जदि नाई दिले अशांति आमर घर भितर लेंबू कहीं गला लेंबू कहीं गला अस्थिरता मन करता आम परिवार जदि किछि किछि परिस्थिति भिन्न हैला सुस्थिर जीवन अच्छे प्रभु तुम्हें अच्छ प्रभु जहाँ हो गले भी तुम्हें मते सुरक्षा देल प्रभु तुम्हें चलैल आमे कहि पारिबा। विगत सप्ताह प्रिय मंडली आंध्रा रे गोदावरी नदी रे युवा माने 8 जन गाधीबा पे गले एवं 8 जन मध्य गोदावरी नदी रे ओहली गले शेष को 8 जनकर मृत शरीर मिलिला एवं सेमानक मध्यरु 2 जन युवा गोटे पालकर पुओ माने से माने जनकर बयस 18 वर्ष आ जनकर बयस 20 वर्ष ये 2 जन मध्य प्रभु सेवारे बहुल भाव में व्यवहारित होते 2 जन पुओ मध्य जेते बेले कि प्रभु सेवारे व्यवहार होता संतान माने जेते मृत्युबण हो गले बापा माँ जीवन केमिति थिबो। प्रथम प्रश्न उठिब जे आमे समाज को कौन प्रचार करिबो तुम्बर प्रभु कौन कले कहले आमे समाज को कौन कहबो आ लोक मान को मध्य को आमे केमिति जीवो जे अंबर परमेश्वर महान कहबा निमंते जदि भी आमे कहबा पे जदि जीवो लोक माने कहबे अरे तोर परमेश्वर तो तोर संतान मान को गोदावरी नदी रक्षा करि पाले नाही आ अंब को रक्षा करिवे केमिति को अछु बाकी तमाम लोक हे तो प्रभु को जानी ना से माने गोदावरी मृत्युबरण करी गले किंतु तोर परमेश्वर महान जदि कहू अच्छु ताहले तोर 2टी संतान कहीं जीवित रहे ने प्रश्न करेंगे लोक माने प्रथम यही सवाल उठिब ताहांको जीवन रे जेतेबेले 2टी समाधि 2 जन संतान को एका संगे कफिंग बॉक्स रे भरी प्रभुंकर दास एवं सही जगार
ଯେତେବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଭାବିଲେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ, ହୁଏତ ସେ ମୁଖର କଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା କେମିତି ଦେବା ଆମ୍ଭେମାନେ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଭରସା ଦେବା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଚାରିଆଡ଼େ ଥିବା ଅନେକ ଦାସମାନେ ଅନେକ ପାଳକମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଜାଗାକୁ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ଏହି ପାଳକଙ୍କ ପରିବାର ସେବା କରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପାଳକ ମାଇକ୍ ଧରିଲେ, ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ମଣ୍ଡଳୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଳକମାନେ ସମସ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହର ହୁଅ ନାହିଁ, ଆମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଆମ୍ଭ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର କିଛି ଯୋଜନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନେଇ କରନ୍ତି। ଯଦି ମୋର 2 ସନ୍ତାନ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ବଣାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁମତିରେ ହିଁ ହେଇଛି, ଏହା କାହାର ଅନୁମତିରେ ହିଁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କେହି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ କେହି ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏହା ଅଛି ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ପଢ଼ିଥିବା ପଦର ଅର୍ଥ। କ'ଣ ପଢ଼ିଲା ଆମେ ମାନେ? ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୁଅ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକ କେବେ ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ଦିନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଛି ଦିନରେ। କିଛି ଯଦି ଆମ ଭିତରେ କମି ହେଇଗଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା, ଭରସା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଠାରେ, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଚାଲ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେଇ ଜାଗାକୁ, ଏଇ ଜାଗାକୁ, ସେଇଟା ଏଇଟା। ଧାର୍ମିକ ଲୋକଙ୍କର ଗୁଣ ଏହା ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯାହା ବି ଘଟିଯାଉ ନା, ଭୋକରେ ବି ମରିଯାଉ ତା ପରିବାର, ରୋଗ ବି ଆସିଯାଉ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ, ଚାରିଆଡ଼େ ସମସ୍ୟା ଘେରେଇ ହେଇଯାଉ ତା ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ, ସେ କେବେ ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେବ ନାହିଁ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମ୍ଭ ଭିତରେ ଯଦି ଏହା ଗୁଣ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ଦିନରେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଭିତରେ ଗଣନାକୁ ଛିବା ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଛି ଦିନରେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଧାର୍ମିକ କହିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସାହସ ରହିବ। ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଇଗଲେ ବି ଆମ୍ଭେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇବାନି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ତାପରେ ଲେଖାଯାଇଛି, କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ନିର୍ଭୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କେବେ ବି ଭୟ କରିବ ନାହିଁ କୌଣସି ବିଷୟକୁ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ସେ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ ତା ଜୀବନରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁ ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବି କରୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଯେ ତାକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁ ତା ଜୀବନରେ, କେହି ତାର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆସନ୍ତୁ ବା ନ ଆସନ୍ତୁ, ସେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। এই ସବୁ କିଛି ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗୁଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ନୋହଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ନୋହଙ୍କ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ନୋହ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ଆମେମାନେ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଯଦି ସମୟ ହୁଏ କାଲି ଦିନ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ନୋହ ଆଖାପାଖି 100 ବର୍ଷ 2 ମାସ 17 ଦିନ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କଲେ। କେତେ ବର୍ଷ? 100 ବର୍ଷ 2 ମାସ 17 ଦିନ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ହରେଇଲେ ନାହିଁ, ଭୟ ବି କଲେ ନାହିଁ। ଏତେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟାକି ନୋହ 500 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ନୋହଙ୍କର 600 ବର୍ଷ 200 ମାସ 17 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କଲା ପରେ ଜଳ ପ୍ରଳୟ ଆସିଲା ଭୂମି ଉପରେ। ସେ କାହାକୁ ଭୟ କଲେ? 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଥିବେ ନୋହଙ୍କ ପାଖ, କହିଦେବେ ନୋହ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବୁ, ତୁ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବୁ ପ୍ରଭୁର ନାଁ ନେଇକି ତୁଇ। ଆଉ କେତେ ଲୋକ କହିଥିବେ ତୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ପାଗଳ କାହିଁକି ହେଇଗଲା ଆଜି ଦିନରେ, କେବେ ଆକାଶରୁ ପାଣି ବର୍ଷିବା ଦେଖିଲୁ, ପାଣି କ'ଣ କରିବୁ ରେ? ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂମିକୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଭୂମି ଉପରେ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆଜି ଆମେ ମାନେ ବର୍ଷା କାଳ, ଶୀତ କାଳ, ଖରା କାଳ, ଖରା ଦିନ ଦେଖୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳ ବି ନାହିଁ ଭୂମି ଉପରେ, ସବୁ ସମୟର ସମାନ ଭୂମିରେ ଥିଲା। ସେହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୋହଙ୍କର ଜଳ ପ୍ରଳୟ ପରେ ହିଁ ବର୍ଷା କାଳ, ଶୀତ କାଳ, ଖରା କାଳ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୂମି ଉପରେ। ସେଇ କିଛି ନ ଦେଖିଥିବା ସମୟରେ ନୋହ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଭୟ କଲେ ନାହିଁ, କେବେ ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହେଲେ ନାହିଁ ନିଜ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ। ଅବ୍ରାହମ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, କଲ୍ଦୀୟ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସବୁ ଫସଲକୁ ବିନାଶ କଲେ। ଅବ୍ରାହମ ସେଇଦିନ ଭୟଭୀତ ହେବା କଥାରେ ବିଜାତି ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିନାଶ କରିଦେଲେ।
ମୁଁ କଣ କରିବି ଯାଇକି ସେ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ପାଦରେ ପଡ଼ିବା କଥା ଅବ୍ରାହମ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଏତେ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ମୋର ଏତେ ବର୍ଷର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବିନାଶ କରିବେ ମୁଁ କେମିତି ଚାଲିବି ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ତୁମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତାହା କରିବି तुम्हें रविवार डाकिले भी आसबि शनिवार डाकिले भी आसबि आराधना छाड़ी के आस कहले भी आसीजी कहवा कथा अब्राहम कही ना जिते से माने समस्ते फसल विनाश कले दास मान आसिले अब्राहम को निकट कहले दास आंबर सबकिछि विनाश हो गला अब्राहम कहले भय कर नाही हालेलुया ताली बजे धन्यवाद प्रिय मंडली भय कर नाही लोक माने अब्राहम काड़ देखिले दास माने भाविले कौन आमर मालिक भय कर ना कौ अच्छे हाँ कौन अच्छे आम मालिक पाखरे सबू तो सर्वनाश हो गला आउ तो किसी ना मो मालिक पाखरे आ मालिक कौच भय कर ना कि से कहीं कहले जानते ना धार्मिक लोक नाम कहीं पाई जानते ना से भय करना कौन से अभाव को देखिकी हालेलुया से कौन से अभाव को देखिकी पछ घुंचा जाई ना कहारी पाद पर पड़ी ना अब्राहम जानते प्रभु प्रतिदिन मु तुम्ब पाद पर पड़ी व्यक्ति अटे मुझे जगत रे विनाश को भय करें तुम्ब को छाड़देले आम जदि प्रभु को भय करवा ना प्रिय मंडल आज दिन में ये भूमि उपर कौन सी भय को भयभीत होगा पड़ो ना कौन सी गोटे रोग कौन सी गोटे अभाव कौन सी गोटे संकट कौन सी गोटे परिस्थिति देखिए भय करते केबे धार्मिक लोक केबे भी कौन सी विषय को भय करवा ना प्रिय मंडली यही प्रकार जब आम देखी चलवा ये 7टी विषय आज आम मान भीतर नितांत आवश्यकता कहीकि बाइबल मान को वर्णना करें से आप मन रखु मो 7टी विषय किए जाने काली भी शेष करी कि ना मुझे जाने ना गोटे मात्र पॉइंट रे 9टा समय हो जाए आज दिन में छोटे आम मैंने देखला नोहंकर धार्मिकता आम्भे मैंने आज धार्मिक होगा पहले आमको शिखबार अच्छी कौन कहले प्रभु को देइतिबा कथारे स्थिर रहिबार अछि हालेलुया कथारे केबे भी बाम बा डाहाण को केबे नचिबा कथा बे माने प्रभु को जब आम कहिछु प्रभु मु तुम पाई प्रभु आम प्रभु को पाई चलिबार अछि यदि प्रभु को आम हृदय देइछु आज दिन में ए हृदय पुनर्बार जगत आड़ को नचिबा कथा ए शरीर जदि प्रभु को पाई देइछु आम माने ए शरीर प्रभु को छाड़ी के जगत आड़ को नचिबा कथा यहाँ को कहा जाए धार्मिकता प्रिय मंडली धार्मिकतार 7टी गुण आपण माने घर को गला परे आपण माने देखंतु यही प्रत्येक फल आपण भीतर यदि रहे ना आपण धार्मिक हेले अनुग्रह पाइबार प्रथम पॉइंट रे आपण विजय पाई सारी तेबे सुनिश्चित भाव में आंभ मान जीवन सदा प्रभु आशीर्वाद करेंगे आसद चक्षु बंद करवा प्रभु ठारे प्रार्थना करवा प्रभु को कहवा प्रभु आंबर 4टी पीढ़ी पर्यंत अभिशाप नुहे 1000 पीढ़ी पर्यंत आशीर्वाद निमंते तुम उपस्थित आसी प्रभु प्रभु ठारे प्रार्थना करवा अच्छी दिन में सदा प्रभु निजे कहते तुम्हें से मान को प्रणाम कर तुम तृतीय व चतुर्थ वंश को पितृगत दोष हेतु मुझे मान को अभिशाप करी